बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, स्टडीज़ पर फोकस किया हुआ होगा गेम्स के अलावा। ठीक है स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो दैट वी हैव completed total 7 chapters out of this book. So today we are going to start the new chapter, that is chapter number 8 about electrochemistry. So students, open your book and come on page number 118, that is chapter number 8, electrochemistry. Okay, so what is electrochemistry, students? First of all, I would like to define the terminology, that what is it. It is actually a branch of chemistry which deals about the interconversion of the two energies, which are electrical energy and chemical energy. You can see on board the title electrochemistry. As you see that electrochemistry is made up of two words, electric and chemistry, electronics, or you can say that chemistry. Okay, so this is the branch of chemistry which deals with the study of these two types of the energies, electrical energy and chemical energy. Okay, तो आपको इससे पहले भी बताया जा चुका है कि एनर्जी क्या है। एनर्जी एक्चुअली पावर होती है जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सोलर, मैकेनिकल, थर्मल. सो देयर आर टू many types of the energies, but in this branch of chemistry we will discuss only the two types of the energies which can be interconverted into each other. Like electric energy can be converted into the chemical energy and vice versa. ओके, सो क्या बताती है हमें ये केमिस्ट्री की फील्ड? इसमें हम एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी केमिकल से पास की जाए तो केमिकल में क्या चेंज आता है, और अगर केमिकल एनर्जी रिलीज हो उस केमिकल से तो उसका इफ़ेक्ट या उसका रिलेशनशिप केमिकल एनर्जी के साथ क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एसोसिएट होती है टू टाइप्स की एनर्जीज के साथ। एक टाइप की एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरी होती है केमिकल एनर्जी. सो दिस ब्रांच इज एसोसिएटेड विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, electric energy and chemical energy. So you can see on board that here is electrical energy is converting into the chemical energy first, then chemical energy can be reversed and convert into the electrical energy once again. Okay, so it means that this reaction is first of all the forwarded reaction, then it can be backward reaction. Okay, so it can be forward first, then it can be backward then. Is that clear? So यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे एनर्जी से रिलेटेड वो होगा इंटर कन्वर्जन. ओके ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं आपको वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपको ये चैप्टर थॉरोली समझ में आएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक बात पता है कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो कि अर्थ क्रस्ट पर एग्जिस्ट करते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. नंबर वन, वो सब्सटेंसेस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, एंड नंबर टू, वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना अलाउ करते हैं. ठीक है, तो इन दो सब्सटेंसेस के अंदर हम ये फिनोमिना स्टडी करते हैं. यानी अब देखिए, मैंने आपको दो टाइप्स के आपको सब्सटेंसेस बताए. नंबर वन, मैंने कहा आपसे कि दो सब्सटेंसेस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, सो दे आर नॉर्मली कॉल्ड कंडक्टर्स. What they are called? Conductors. And in the terms of electrochemistry, they are called electrolytes. So what are the electrolytes? Electrolytes are those substances which allow to pass electricity or electric current through them. For example, कौन से होते हैं ये? So I have shown you that first of all the metals are the good conductors of electricity because of having the free or mobile electron in their structures. Because of having the mobile electron, they allow to pass electric current through them. Either they are solid in nature.
सॉलिड होने के बावजूद ये अपने अंदर से करंट पास करते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। अदरवाइज जो नॉर्मल कैरेक्टर है सॉलिड्स का, उसके अकॉर्डिंगली सॉलिड्स डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्ट मेटल। अगर हम कहते हैं कि मेटल भी तो सॉलिड है, ये कैसे करंट पास कर रहा है? सो आई टोल्ड यू द रीजन। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल के कंडक्टर्स और कौन कौन से होते हैं? ऑल एसिड्स, all bases, all salts, in short they are called as the ionic compounds. ओके तो यानी वो कंपाउंड्स जो एक्वस मीडियम के अंदर आयोनाइज हो जाएं, वो इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं। गौर कीजिए, मैंने क्या वर्ड कहा कि इन द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम मीन्स के इन द सॉलिड फॉर्म दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट when they will dissolve in water, then easily they have the ability to pass electric current through them. Okay, and except this solution forming, कि अगर आप solution formation की बात नहीं करते हो तो क्या फिर कंडक्शन नहीं होगी? फिर भी कंडक्शन हो सकती है, वो उसकी एक दूसरी स्टेट होगी। दैट स्टेट इज कॉल्ड एज द लिक्विड स्टेट, जिसको हम फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टन स्टेट भी कहते हैं। यानी 3 स्टेट्स होती हैं हमारे पास मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके तो एक्सेप्ट सॉलिड स्टेट, इन ऑल द रिमेनिंग स्टेट्स दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड अगर हम स्टेट के अलावा बात करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ दी सब्सटेंसेस कैन पास इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास कर सकते हैं तो इन्हें हम इजीली इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इट मीन्स दैट कि ये अपने अंदर से जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास करेंगे तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे? यस, केमिकल एनर्जी के अंदर। सिमिलरली ये तो एक सिंपल आपको फिनोमिना नज़र आया कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आप पास कर रहे हैं किसी केमिकल के अंदर से तो वो केमिकल एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब वो केमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी फर्स्ट हाफ में कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी के अंदर, अब नेक्स्ट हाफ में यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कैसे होगी? अभी वीडियो के आगे जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हर चीज़ आपको समझ में आती चली जाएगी कि ये प्रोसेस हो तो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है ये भी आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगी हर चीज़। बस आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, हर चीज़ पर आपने कॉन्सेंट्रेशन देनी है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ऑन द या इन कंट्रास्ट अगर आप देखें तो कुछ और सब्सटेंसेस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ क्रस्ट विच आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि अपने अंदर से करंट पास नहीं करते। मैंने बोर्ड पर क्या लिखा? दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अपने अंदर से ये करंट पास नहीं करते। सो व्हाट दे आर कॉल्ड? They are called in the common terminology insulators. ये वो होते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते, इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और इन केमिकल टर्मिनोलॉजी these insulators are called non electrolytes. वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी। अब कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देते? वो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज नहीं होते, और अगर ये आयोनाइज नहीं होते तो डेफिनेटली ये अपने अंदर से करंट भी पास नहीं करेंगे, क्योंकि करंट की प्रॉपर्टी आपको अभी हमने क्या बताई कि ये वहीं से पास होते हैं जहाँ पर आयनाइजेशन होती है, क्योंकि आयनाइजेशन प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट पास होने लगता है। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने लगते हैं आसानी के साथ, जैसे कि अभी हमने आपको मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर बताया कि ये मेटल लिक्विड स्टेट में नहीं है, गैशियस स्टेट में नहीं है, एक्वस फॉर्म में भी नहीं है, ये तो सॉलिड है लेकिन करंट पास कर रहे हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये करंट को कंडक्ट करने लगते हैं और इजीली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से ट्रांसफर होने लगता है, सप्लाई होने लगता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी इंसुलेटर्स, जो कि अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देते। एग्जाम्पल देखिए इसकी, लाइक बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। आई हैव written only few examples in front of you, so you can see C6H6
व्हाट इज दिस? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका नाम है बेंजीन। दूसरा उससे भी ज़्यादा फेमस कंपाउंड है जो कि आप लोगों ने सुना हुआ होगा, अल्कोहल। इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है ये। फिर और कॉमन एग्जांपल्स आप लोगों ने देखी हैं अपनी लाइफ में, पेट्रोल, ऑयल, वैक्स, सो ऑन। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। कभी आप ट्राई करो इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करने के लिए, तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे मीन्स आयोनाइज नहीं होंगे, और अगर आयोनाइज नहीं होते मीन्स ये गुड कंडक्टर्स नहीं हैं, सो दे आर द बैड कंडक्टर्स। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हम जिस एनर्जी की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का रिलेशन है केमिकल एनर्जी के साथ, और केमिकल एनर्जी का रिएक्शन है इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ। तो यहाँ पर हम उन्हीं केमिकल्स को स्टडी करेंगे जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कर सके। मीन्स हमें इस चैप्टर की स्टडी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन इन कंट्रास्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑपोजिटली इलेक्ट्रोलाइट के अगेंस्ट और कौन से सब्सटेंसेज हैं जो कि नेचर में एक्सिस्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी गई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके साथ ही हम इस चैप्टर को थॉरली स्टडी करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बता दिया। तो अब इसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको स्टडी करना कंपलसरी है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट जब आयोनाइज होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला स्टेप है वो क्या है? आयनाइजेशन, ठीक है, आयनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड में जैसे हम आपको एग्जाम्पल शो करते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, जिससे मैं आपके सामने लिखती हूँ सोडियम क्लोराइड, दिस इज द नॉर्मल कंपाउंड, ओके। तो व्हेन इट विल बी आयोनाइज्ड इट विल गिव अस द पॉजिटिव आयन एज वेल एज द क्लोराइड आयन, ओके। सिंपली मैं एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, कॉपर सल्फेट, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है बट ऑन आयोनाइजेशन इट विल गिव अस कॉपर पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट नेगेटिव आयन। तो इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि आयनाइज होते हैं। इस आयनाइज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। तो सबसे पहले कंपाउंड्स के अंदर होती है आयनाइजेशन और उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी अब कैसे आयनाइजेशन हो रही है, यानी ये आयंस में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली सम एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन। अब जिस एनर्जी की वजह से ये डिकम्पोज हो रहे हैं वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग एनर्जी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो अब ये जो आयनाइजेशन का प्रोसेस है, इसके बाद ये आयंस अपने टर्मिनल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और ये मूवमेंट ऑफ आयंस टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस, हमारे नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसे समझने के लिए, वो क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक कंडक्शन। यानी इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है वो कंपाउंड, और कन्वर्जन के बाद जब वो अपने रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दे या माइग्रेट करना शुरू कर दे, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक भी कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, जो कि कहाँ से हो रही है? थ्रू और with the help of, यानी through the electrolyte with the help of an instrument which is called electrolytic cell। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने सॉल्यूशन बस ऐसे ही हमने ज़मीन पर थ्रो कर दिया और वो डिसोसिएट हो गया या आयोनाइज हो गया। कोई भी केमिकल रिएक्शन ऐसे ही तो नहीं हो जाता। यानी अगर हम उसे आर्टिफिशियल बेस पर कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता, उसको एक बाकायदा एक्सपेरिमेंटली उसको मीडियम प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कि ये कंडक्शन होती है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है और उसमें किस तरीके से कंडक्शन हो रही है। यस स्टूडेंट्स, सी दैट दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ अ वेसल। आपको एक बीकर नज़र आ रहा है जिसको मैंने वेसल का नाम दिया, एंड आपको इसमें कुछ हैंगर्स नज़र आ रहे हैं। दीज आर द मेटेलिक प्लेट्स। इन मेटेलिक प्लेट्स को अगर हम
मेटेलिक वायर के ज़रिए किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये मेटेलिक प्लेट्स बन जाती हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बन जाते हैं? ये इलेक्ट्रोड्स बन जाते हैं। तो इन मेटेलिक प्लेट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड, बट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब इन मेटेलिक प्लेट्स का नाम होता है इलेक्ट्रोड्स, अदरवाइज ये सिंपल मेटेलिक प्लेट्स हैं। लेकिन आपने देखा कि इनका कनेक्शन मैंने दिया हुआ है एक मेटेलिक वायर के ज़रिए एक बैटरी के साथ, और बैटरी आपको मालूम है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग और प्रोड्यूसिंग एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। तो जो प्लेट, जो मेटेलिक प्लेट या जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उसे हम कहते हैं कैथोड। यानी कैथोड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ऑन द अदर हैंड बैटरी का एक और एंड है जो कि कनेक्ट हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ। इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस प्लेट का नाम है एनोड। इसको हम कहते हैं एनोड टर्मिनल या एनोड इलेक्ट्रोड, जो कि पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनोड एंड नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कैथोड। अब कैथोड पर जो प्रोसेस अकर हो रहा है उसका नाम है रिडक्शन, और एनोड पर जो प्रोसेस अकर हो रहा है उसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्चुअली क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कोई भी जो आयन यहाँ पर आता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जो भी आयन इस टर्मिनल पर माइग्रेट करके आता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। ऑन द अदर साइड ये जो हमारे पास कैथोड टर्मिनल है, यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आता है वो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और यहाँ पर आकर उसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं जहाँ से वो गेन करता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस वजह से गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ पर, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रिडक्शन का प्रोसेस हमेशा कैथोड टर्मिनल पर होता है, जबकि ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो प्रोसेस है वो हमेशा एनोड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम कैथोड पर जो प्रोसेस दिखा रहे हैं वो रिडक्शन का प्रोसेस है, जहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब क्या मतलब है इसका, यहाँ देखिए आपको एक सॉल्यूशन नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, जो कि कॉपर सल्फेट है, इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ब्लू कलर का ये सॉल्यूशन होता है, आयनिक कंपाउंड है। जब ये बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है और इस कंपाउंड के अंदर से यानी इस केमिकल के अंदर से पास होता है तो इस केमिकल को वो डिकम्पोज कर देता है, और जब ये डिकम्पोज होता है तो एक्चुअली ये आयनाइज होता है। और आयनाइजेशन इक्वेशन मैंने अभी आपको दिखाई है बोर्ड के ऊपर कि जब कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होता है तो ये आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कॉपर चूँकि मेटल है इस पर पॉजिटिव आयन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सल्फेट नेगेटिव आयन बनाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो कॉपर लूज करता है सल्फेट उन्हें गेन कर लेता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि कॉपर सल्फेट पर पॉजिटिव आयन क्यों आया। अभी मैंने बताया कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए सॉल्यूशन के अंदर, तब ये चार्ज पार्टिकल बन गया, और कौन सा चार्ज इस पर अपीयर हुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ये शो कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, और जब ये न्यूट्रल होगा तो इसको दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से मिल गए तो ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, सल्फेट के साथ भी सिमिलरली ऐसा ही होगा कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन जो कि कॉपर से आ रहे हैं ये उसको गेन कर लेगा, और जब ये गेन करेगा तो गेन करने पर इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बनने के साथ ही अगर इसको किसी सोर्स से कुछ ऐसा टारगेट मिले कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, और ये जो इसने बोरो किए हैं इलेक्ट्रॉन कॉपर से ये उनको डोनेट कर दे, तो ये डोनेट करता है, और करने के बाद यानी जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं अगर ये अपने स्ट्रक्चर से बाहर निकाल दे तो ये दोबारा न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है ना, तो अब ये प्रोसेस आयोनाइजेशन तो मीडियम के अंदर होती है, लेकिन मीडियम के अंदर आयोनाइजेशन के बाद ये फौरन आयंस अपने अपने टर्मिनल की तरफ रनिंग शुरू कर देते हैं, यानी माइग्रेशन शुरू कर देते हैं जहाँ से दोबारा न्यूट्रल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि करंटली कंडक्शन कंटिन्यूसली मीडियम के अंदर हो रही है, और जहाँ पर एनर्जी कंटिन्यूसली मिल रही है वहाँ पर ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन जो लूज और गेन कर चुके हैं ये उस मीडियम में दोबारा नहीं ले सकते।
तो अब ये उन टर्मिनल्स पर जाएंगे, उन सॉलिड टर्मिनल्स पर जाएंगे जहाँ पर इनको अपने दिए हुए ये लिए हुए इलेक्ट्रॉन दोबारा एक्सचेंज करने का मौका मिले। तो कॉपर पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज यू नो दैट कि ऑपोजिट चार्जेस अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की यानी दिस टर्मिनल इज रिच विद द इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और यहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इसकी तरफ माइग्रेट करेगा ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो वापस गेन करे और अपने स्ट्रक्चर को न्यूट्रल करके यहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको डिपोजिशन दिखा दी है, ठीक है। ऑन द अदर टर्मिनल क्या हो रहा है कि यहाँ पर सल्फेट आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया है, इसकी वजह से ज़्यादती की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ माइग्रेशन शुरू कर देगा क्योंकि इस टर्मिनल के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर बहुत कम, इस टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर चूंकि एक आयन ऐसा मौजूद है कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो वो ये चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन वो उस टर्मिनल को डोनेट कर दे जहाँ पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये वहाँ पर मूव करेगा, वहाँ पर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और लूज़ करने के बाद ये फ्री हो जाएगा उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से जो कि इसने बोरो किए थे कॉपर से। और जैसे ही ये फ्री करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये न्यूट्रल हो जाता है और न्यूट्रल होने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है एनोड टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर क्या चीज़ हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसको हमने ऑक्सीडेशन कहा। एंड कैथोड टर्मिनल पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हो रहा है जिसको हमने रिडक्शन कहा। तो ओवरऑल ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस, इन विच माइग्रेशन ऑफ आयंस टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स इज अकरिंग, ठीक है। तो एंड ये पूरा सेल, पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या कहला रहा है, पूरा इंस्ट्रूमेंट कहला रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि कंपोज होता है वेसल, जो कि ग्लास वेसल होता है, मेटेलिक प्लेट्स होती है, मेटेलिक वायर होता है, एंड बैटरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। इन तमाम चीज़ों को मिलाया जाए तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ होता है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, मैं दोबारा बता दूँ, द प्रोसेस in which ions are migrated towards their respective pole after the ionization. This is the very short definition. Now, अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस को क्लियरली, यानी इट वॉज क्रिस्टल क्लियर बाय होम, सो इट वॉज क्रिस्टल क्लियर बाय द साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ही वॉज वर्किंग ऑन द फिनोमिना इन 1833। सो उन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रपोज किए और इन लॉज को उन्होंने नाम दिया क्वांटिटेटिव लॉज। यानी इन लॉज के अंदर उन्होंने एक्चुअली अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस कैलकुलेट किए, यानी वो सब्सटेंस जो कि कैथोड टर्मिनल पर आकर डिपॉजिट हो रहा है या एनोड टर्मिनल पर। ज़्यादातर कैलकुलेशन हमारे पास कैथोड टर्मिनल की है कि यहाँ पर जो मेटल आकर डिपॉजिट हो रहा है वो कितनी अमाउंट पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी कितनी क्वांटिटी में करंट पास किया जाए तो कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो। ये फिनोमिना स्टडी किया, इसकी कैलकुलेशन की माइकल फैराडे ने इन 1833 के अंदर। तो इनका इन्होंने दो लॉज इस्टेब्लिश किए जो कहलाते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ फैराडे का पहला लॉ एक्सप्लेन करेंगे और इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन to you the Michael Faraday's second law of electrolysis. So these laws are, I am telling again, these laws are the quantitative laws. Okay. So according to the first law, क्या कहते हैं अपने पहले लॉ के अंदर? Now see that amount of any substance deposited or liberated, एक ही मतलब है दोनों का, at an electrode during electrolysis। अब देखिए टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी क्लियर कि मैंने आपको पहले समझा दिया था। इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the quantity of current passed through the electrolyte। अब देखें आपके यहाँ पे अमाउंट कवर्ड आपके लिए नया नहीं है, डिपोजिशन कवर्ड नया नहीं है, इलेक्ट्रोलिसिस कवर्ड नया नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको स्टेटमेंट से पहले ही एक्सप्लेन कर दी है क्लियरली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, अमाउंट ऑफ द डिपॉजिटेड, यानी जो पहली लाइन है अमाउंट ऑफ द डिपॉजिटेड सब्सटेंस, उन्होंने क्या कहा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द क्वांटिटी ऑफ करंट के, ठीक है।
क्वांटिटी ऑफ करंट के एक टाइम के अंदर, यानी कितने टाइम तक कितना करंट पास किया जाए कि अमाउंट, एक ख़ास अमाउंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाए, और फिर वो जो अमाउंट डिपॉजिट हो रही है वो कितनी है, हाउ मच क्वांटिटी इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड या एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो उन्होंने ये क्वांटिटेटिव लॉ प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा करंट पास किया जाता है, डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की अमाउंट भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमें क्या बता रहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज है तो दूसरी भी इंक्रीज है, अगर एक डिक्रीज है तो दूसरी भी एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पर आप देखिए मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू द लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू T। क्या होता है W, क्या चीज़ है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, W इज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस एट कैथोड। A क्या चीज़ है, एक करंट है जो कि एम्पियर में मेजर किया जाता है, T टाइम है जो कि सेकंड्स के अंदर मेजर किया जाता है। और यहाँ पर इस साइन को, यानी हमने आपको देखा कि दिखाया भी आपको कि यानी जितना करंट एक टाइम तक, एक ख़ास टाइम तक पास किया जाता है, तो यानी ये जो प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट है A इंटू T, ये टोटली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस पर। यानी अगर करंट की अमाउंट पास की जा रही है तो टाइम भी इंक्रीज होगा। ओके, दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी, दोनों का प्रोडक्ट एक साथ जब इंक्रीज होगा तो डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की अमाउंट भी ज़्यादा होगी। और अगर ये अमाउंट, अगर करंट की अमाउंट टाइम के साथ कम होगा तो डेफिनेटली डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस की अमाउंट भी कम होगी। ओके, अब नेक्स्ट कि जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो हमें उसको रिमूव करना होता है कोई कांस्टेंट देकर, ठीक है। अब हमें इसको रिमूव करना है, इसकी जगह एक कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट जो है वो यहाँ से हटाकर हमें एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कांस्टेंट लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पर देखो मैंने मेंशन किया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, इसका सिंबल होता है Z। तो हम इस साइन को रिमूव करके जो हम यहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे Z। तो Z क्या चीज़ है, Z इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विच इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 कोलम। यानी जब 1 कोलम इलेक्ट्रिक चार्ज, कोलम इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, जब 1 कोलम इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया जाता है एक टाइम पीरियड के साथ, तो हमें अमाउंट जो मतलब ऑब्टेन होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास जो फार्मूला हमारे पास आया फैराडे का, इसके थ्रू हम बहुत क्लियरली हम कैलकुलेशन में इससे हेल्प ले सकते हैं जस्ट टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओवर द इलेक्ट्रोड। आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ crystal clear to all of you that each and everything is very much easy for you now from the today's lecture। तो यहाँ पर clear मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है। now come towards the असाइनमेंट में किस तरह से आप असाइनमेंट से कॉपी किस तरह से करना है आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर, तो वो मैं आपको शो करती हूँ, अब आप देख लीजिए। Yes students, now come on assignment number 1 that is provided to you for copying in your chemistry copies as it is, okay। And for getting the concepts again and again you will have to watch the video in which each and everything is very clear to you, okay। So don't miss the video। So in first of all you will make the title page, okay। अच्छा, एक confusion आपको शायद ये हो कि अभी हमारे numericals चल रहे थे, क्लासेस ऑफ हो गई, so don't worry about your numerical work। So when your physical classes will be started inshallah taala, all the numericals related to chapter number 7, 8 and 9 will be solved all together, okay। So don't worry about your numerical work। So it is possible to clearly explain in the physical classes, not it is possible in the videos। So that's why I have dropped these topic, inshallah it will be covered in the physical class, okay friends। now come towards again the assignment। in the first question, define electrolyte and non-electrolyte with the help of examples। so यहाँ पर electrolyte की definition clearly आपके सामने है, non-electrolyte की with example, and board पर भी आपको हर चीज़ समझा दी गई है। तो आपने इसे अपनी वर्कशीट से कॉपी करना है और वीडियो से आपको समझना है कि ये होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपको पेज नंबर रेफ़र कर दिया है और देखिए मैंने इसमें भी आंसर दे दिया है और पेज नंबर भी। अगर कहीं स्पेलिंग मिसिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्लियर नहीं है, तो फिर आप रेफरेंस मैंने दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 का रेफरेंस है
आंसर का रेफरेंस है 118 एंड 119। क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर है 124। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी है, और एक्सप्लेनेशन के बाद आपने ये तमाम वर्क एज इट इज़ कॉपी डाउन करना है। और जो मैंने वीडियो में डायग्राम बनाई है, अगर पॉसिबल है तो वीडियो को पॉज कर करके आप वो डायग्राम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना एक्सप्लेन किया है, तो काइंडली वो आप ज़रूर बना लें इस स्टेटमेंट के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू, अल्लाह हाफिज़।